Welcome students in our Prayag Public School Social Studies online classes. Students, as you know, due to COVID-19, like last year, this year also government has ordered that every school will be closed और हमारे जो स्टडीज़ हैं वो किसी भी तरीके से उसमें किसी भी तरह का बैड इफ़ेक्ट ना पड़े, इसके लिए हम लोगों ने हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं फ्रॉम टुडे. And from today we will study our social studies. So before we start our class we should know what we have to study in this year. Class 9th में हमें क्या क्या पढ़ना है, what is our syllabus, and how our syllabus is divided into four parts: periodic test 1, term 1 examination, periodic test 2, and term 2 or final examination. So let's know about the syllabus. Students, you all know, in one academic year, our school or any CBSE affiliated school conducts 4 times examination, है ना, 4 बार हम लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं. एंड फॉर दैट आवर सिलेबस इज़ divided into 4 parts. First we will see the economic syllabus. Economic syllabus में we have 4 chapters. Chapter first, the story of village Palampur, will come in our periodic test 1. So chapter second, people as resource, is will be part of our term 1 examination. Chapter third, poverty as a challenge. This chapter will come in our periodic test 2 exam. And chapter fourth, food security in India, and our 3 previous chapters, chapter 1, 2, 3, will come in our final term examination और टर्म टू एग्ज़ामिनेशन. ठीक है, तो ये जो हमारा टर्म टू एग्ज़ाम होगा फोर्थ, उसमें सारे चैप्टर्स इंक्लूड होके एक साथ हमारे एग्ज़ाम में आएंगे. नाउ लेट्स नो अबाउट हिस्ट्री सिलेबस. इन आवर हिस्ट्री देर आर 4 chapters. Chapter first, the French Revolution, will be part of periodic test 1. Chapter second, socialism in Europe and the Russian Revolution, will come in our term 1 examination. चैप्टर थर्ड, नाजिज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ये चैप्टर हमारे पीरियोडिक टेस्ट सेकंड में का पार्ट होगा. एंड चैप्टर फोर्थ विथ ऑल 3 chapters, चैप्टर फोर्थ, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, will be come in our final term examination or term 2 examination. Now move on to geography syllabus. In our geography there are 6 chapters, only six chapters, जहाँ पर हमारा चैप्टर फर्स्ट, इंडिया साइज एंड लोकेशन, दिस चैप्टर विल कम इन पीरियोडिक टेस्ट 1. चैप्टर सेकंड एंड चैप्टर थर्ड, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड ड्रेनेज, both chapter will be part of term 1 examination. Chapter 4th, climate and natural vegetation and wildlife, both chapter will be the part of periodic test 2. And chapter 6th, population, with all 5 chapters, will come in our term 2 examination or final examination. Next is political science or civics. In civics there are 5 chapters. चैप्टर फर्स्ट, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, यह चैप्टर हमारा पीरियोडिक टेस्ट 1 का पार्ट होगा. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, चैप्टर सेकंड, एंड चैप्टर थर्ड, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, both will be part of term 1 examination. Chapter 4th, working of institution, will be part of term periodic test 2. And chapter 5th, democratic rights, with all 4 chapters, will come in our final term examination. Clear, students, from today we will start economics.
Chapter first, the story of village Palampur. So let's start. The story of village Palampur. स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में हम विलेज पालमपुर की स्टोरी को पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि थ्रू विलेज पालमपुर हम देखेंगे कि किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विलेजेस में होती हैं। यहाँ पर पालमपुर को हम एक एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कि कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो किसी भी विलेज में होती हैं। ठीक है, हमारे जो इस स्टोरी को पढ़ने का के पीछे का पर्पस है, तो सिर्फ यही पर्पस है कि हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमारे प्रोडक्शन का वो समझ सके कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, यानी किसी भी तरह का अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो कौन कौन से एलिमेंट्स के थ्रू हो रहा है और क्या इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं किसी भी प्रोडक्शन के। विलेज पालमपुर में मेन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो है फार्मिंग। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, जहाँ पर मैक्सिमम जो फैमिलीज़ है, मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो फार्मिंग कर रही है और उसी के थ्रू फार्मिंग ही उनका लाइवलीहुड है जिसके थ्रू वो अर्निंग कर रहे हैं। इनके अलावा बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़ भी, अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं, लाइक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट्स एट्सेट्रा। बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं, बहुत सारे अदर लाइवलीहुड के सोर्सेस हैं लोगों के। लाइक पालमपुर, एवरी विलेज need various type of resources for doing production activities, like natural resources, man-made items, man-made resources, human effort, या फिर हम उसे ह्यूमन रिसोर्स कह सकते हैं, मनी और भी बहुत सारी दूसरी चीज़ें, है ना। बहुत किसी भी तरह से अगर प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट वहाँ पर होती है। कुछ नेचुरल चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हमें लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं तो हमें सॉइल की ज़रूरत, अच्छे क्वालिटी के सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी। वाटर रिसोर्स भी हमें अवेलेबल चाहिए। इस तरह से बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। साथ ही साथ मैनमेड आइटम्स, मैनमेड थिंग्स लाइक बहुत सारे टूल्स, वेपन्स, गैजेट्स और बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है किसी भी तरह से अगर हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। साथ में ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन रिसोर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। हमारे स्किल, हमारे नॉलेज, हमारे जो ट्रेनिंग हमको अगर किसी भी तरह की मिली हुई है, हमारे अंदर जो एबिलिटी है उसको यूज़ करके ही हम कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी कर पाते हैं। साथ में मनी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी प्रोडक्शन में। विलेज पालमपुर वेल कनेक्टेड है विद ऑल नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। जो भी विलेजेस और टाउन्स हमारे पालमपुर के पास में है उससे बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। और वहाँ पर रायगंज नाम का एक बहुत बड़ा विलेज है जो कि ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स डिस्टेंस पर पालमपुर से है, उससे भी बहुत अच्छे से वेल कनेक्टेड है पालमपुर। और बहुत सारी जो दूसरे वेज़ हैं, जो भी व्हीकल्स हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, वो हमारे विलेज पालमपुर में बहुत अच्छे से अवेलेबल है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर अवेलेबल हियर, लाइक बुलक कार्ट, टोंगास, बुगीज़, जो जिसे हम वुडन कार्ट कहते हैं, जो कि बफेलोज़ के थ्रू ड्रन होता है। और बहुत सारी चीज़ें उसमें लोड करके विलेज से हम जो हमारे बिग विलेजेस या टाउन्स है वहाँ पर ले जाते हैं फॉर सेल, है ना, उनको बेचने के लिए। डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो भी प्रोड्यूस हो रही हैं, जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक्सेस अमाउंट में, जो सरप्लस अमाउंट में हमारे पास ग्रेन्स हो जाते हैं उनको, या बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं जो यहाँ से सेल करने के लिए, बेचने के लिए ले जाना होता है, वो बहुत आसानी से बिग विलेजेस और टाउन्स में विलेज पालमपुर से ले जाकर बेचा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा वेल कनेक्टेड सारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, है ना। तो इस तरीके से ये बहुत एक अच्छी चीज़ है जो हमारे विलेज पालमपुर में पाई जा रही है। इनके साथ साथ अगर हम विलेज पालमपुर के पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर अबाउट 450 फैमिलीज़ हैं जो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपर कास्ट के हैं, मतलब हमारी पूरी पॉपुलेशन को हम लोगों ने बहुत सारे कास्ट में, क्लासेस में कैटेगराइज्ड किया हुआ है ना। तो उस बेसिस पे हमारे यहाँ पर अपर कास्ट, लोअर कास्ट और हर तरह के लोग मतलब हर तरह की पॉपुलेशन यहाँ पर
पाई जाती है। इसमें 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं जिनमें से ज़्यादातर लोगों के पास इस विलेज में खुद की लैंड है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन के पास, मेजॉरिटी फैमिलीज़ के पास खुद की अपनी लैंड है, मतलब उन्हें दूसरों के लैंड में काम करना नहीं पड़ता। दिस इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग अबाउट विलेज पालमपुर। इनके हाउसेस किस तरह के हैं इस पूरे विलेज का के हाउसेस को अगर हम देखते हैं तो इनके जो हाउसेस है वो बहुत ही लार्ज हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, और ऑल हाउसेस आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स विथ सीमेंट प्लास्टरिंग। ऐसा नहीं है कि विलेज है तो यहाँ पर कच्चा हाउसेस, मड हाउसेस ही सिर्फ मिलेंगे, नहीं, यहाँ पर बहुत सारे हाउसेस हैं जो ब्रिक्स से बने हुए हैं, सीमेंट से प्लास्टरिंग करी हुई हैं। ठीक है, तो ये किन के हैं? 80% जो हमारे अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं उनकी बात हो रही है। लेकिन कुछ पॉपुलेशन है जैसे एससीज, जिनको हम दलित के नाम से जानते हैं, जो हमारे इस विलेज के 1/3 पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। और इनके जो हाउसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, और ये पूरे विलेज में एक लोकेलिटी में, मतलब एक साइड में रहते हैं। यहाँ पर इनके जो हाउसेस हैं वो थोड़े से स्मॉलर साइज़ के हैं, जैसे अपर कास्ट के हाउसेस हैं उनसे थोड़े से छोटे हाउसेस। और ऑल हाउसेस आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। मड और स्ट्रॉ से बने हुए हाउसेस यहाँ पर मिलते हैं हमारे एससीज एसटीज़ के। इस तरीके से विलेज पालमपुर को अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम जो हमारे 80% अगर हम अपर लोअर कास्ट के थ्रू ना देखें तो मैक्सिमम जो हाउसेस हैं वो ब्रिक्स से बने हुए हैं, सीमेंट प्लास्टरिंग से बने हुए हैं, और बड़े बड़े घर बने हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी हमारा जो विलेज पालमपुर है ये बहुत डेवलप्ड दिखाई दे रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। सबके पास ज़्यादातर जो घर हैं उनमें इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी पावर्स जो हैं वो उनको हेल्प करते हैं घर के काम में भी, साथ में जो उनके फार्मिंग में यूज़ हो रहा है, ट्यूबवेल्स वगैरह चलाने में काम आ रहे हैं। कुछ छोटे बिजनेसेस भी हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी हमारे इस विलेज पालमपुर के अंदर है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस होने की वजह से जो हाउसेस है, जो भी बिजनेसेस हैं वो बहुत अच्छे से रन हो पा रहे हैं। साथ में किसी भी विलेज की या किसी भी टाउन की जो अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो शो होता है वहाँ पर जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ और हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर विलेज पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, यानी यहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और 1 हाई स्कूल, एक बड़ा हाई स्कूल भी यहाँ पर बना हुआ है। इसके साथ साथ देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड, है ना। तो यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट के का प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो है ही, साथ में प्राइवेट डिस्पेंसरी, प्राइवेट भी यहाँ पर क्लिनिक खुला हुआ है जहाँ पर सिक पीपल को ट्रीट किया जाता है। तो इस तरीके से है, यानी हमारे विलेज पालमपुर में एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे डिफरेंट टाइप की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं सब कुछ अवेलेबल है। तो इन सब चीज़ों से अगर हम इन पूरे डिस्क्रिप्शंस के बेसिस पे एक समरी करते हैं हमारे पालमपुर के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि विलेज पालमपुर एक फेयरली वेल डेवलप्ड विलेज है ना यहाँ पर, क्योंकि एक अच्छा वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड है, सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, विलेजर्स हमारे ट्यूबवेल्स वगैरह यूज़ करते हैं। इनके अलावा स्कूल्स और हेल्थ सेंटर्स भी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर विलेज पालमपुर कोई बहुत इस तरीके से नहीं कि हम किसी एक विलेज के बारे में पढ़ रहे हैं। विलेज पालमपुर को हम एक एग्जांपल लेते हुए इंडिया के विलेजेस के बारे में समझ रहे हैं कि ज़्यादातर जो हमारे इंडिया के विलेजेस हैं वो किस तरह से हैं, है ना। तो हम पाएंगे कि ये सारी चीज़ें जो विलेज पालमपुर में मिल रही हैं ये किसी भी विलेज को या किसी भी प्लेस को आगे बढ़ाने में, ग्रोथ देने में, डेवलप्ड करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये जो फैक्टर्स है, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी को ले लें, चाहे हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ को ले लें, चाहे हम हॉस्पिटल्स स्कूल्स को ले लें, हाउसेस के साइज़ और टाइप को ले लें, ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं किसी भी विलेज को के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना। तो इसलिए हम इनको समझ के चलते हैं कि अगर ये सारे फैक्टर्स कहीं पर भी किसी भी विलेज में हैं तो वो
विलेज डेफिनेटली ग्रोथ करेगा और वो उनके उस ग्रोथ की ही निशानी होती है ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये जो हमारे जो एक इमेजिनरी विलेज है, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सब कुछ पाया जा रहा है। हम लोगों ने शुरू में पढ़ा कि यहाँ पर जो ऑलमोस्ट पॉपुलेशन है, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, मैक्सिमम, ऑलमोस्ट नहीं मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है हमारी, वो फार्मिंग करती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि फार्मिंग क्या मतलब फार्म एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। वो एक्टिविटीज़ जो फार्म से रिलेटेड है ना, जहाँ पर हम फार्मिंग कर रहे हैं, ये फार्म एक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि सारे जो विलेज हैं, विलेज में रहने वाले जो भी विलेजर्स हैं, वो सब सिर्फ फार्म एक्टिविटीज़ करते हैं, सब सिर्फ फार्मिंग ही करते हो, ऐसा तो नहीं है। हमने शुरू में भी पढ़ा कि दूसरे टाइप के भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एट्सेट्रा, है ना, एनिमल रियरिंग, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी होती हैं किसी भी विलेज में, किसी भी टाउन के अंदर। तो यहाँ पर एक बात एकदम क्लियर रखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जब भी हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिसका पर्पस होता है अर्निंग करना, दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और विलेजेस में टू टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, फार्म एक्टिविटीज़ यानी फार्मिंग, एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज़ यानी फार्मिंग को छोड़कर अदर जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो अदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कहलाएंगी। तो ये डिफरेंस हमेशा माइंड में रखना है कि फार्म एक्टिविटीज़ और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो हमने विलेज पालमपुर का एक इंट्रोडक्शन लिया, या फिर इसको एग्जांपल लेते हुए हमने इंडिया के विलेज का सीन एक तरीके से इमेजिन किया। In our next class, we will know about organizations of production. हम समझेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी तरह का प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स की ज़रूरत होती है ना। तो जहाँ पर हम आज इतना समझेंगे कि कोई भी प्रोडक्शन करना है, किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी करना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लैंड। अगर हमारे पास कोई एक प्लेस होगा तभी हम कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, चाहे वो फार्म एक्टिविटी हो, चाहे वो नॉन फार्म एक्टिविटी हो, है ना। तो फर्स्ट फैक्टर इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन इज़ लैंड। सेकेंड इज़ लेबर। लेबर का मतलब यहाँ पर सिर्फ मजदूर से नहीं है, लेबर्स का मतलब होता है यहाँ पर वर्कर्स। हम कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन भी अगर लेना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए लैंड की ज़रूरत है, और साथ में वहाँ पर वर्कर्स यानी वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी ज़रूरत पड़ती है ना। तो लैंड एंड लेबर। थर्ड थिंग इज़ फिज़िकल कैपिटल। फिज़िकल कैपिटल का मतलब कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड होंगी जब हम कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं। अगर फार्मिंग है तो जैसे हम वहाँ पर वो ट्रैक्टर, वो जो हल है, या फिर जो प्लगिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, किसी भी तरह का जो भी सामान हम यूज़ कर रहे हैं, वो सब क्या है, वो हमारे फिज़िकल कैपिटल है। इनके अलावा ह्यूमन कैपिटल यानी हमारे नॉलेज, हमारी स्किल, हमारा जो वर्क एक्सपीरियंस है, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्शन करने में, है ना। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट ऑल 4 फैक्टर्स। सारे फैक्टर्स के बारे में, प्रोडक्शन के जो भी फैक्टर्स हैं उनको हम और अच्छे से समझेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। जो भी हम लोगों ने आज पढ़ा वो सब कुछ समझ में आ गया होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, यू आर फ्री टू कॉल मी। कभी भी कॉल कर सकते हो। माई नंबर इज़ अवेलेबल इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास. Till then, take care and have a nice day.